जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. So we are currently trying to understand Karma Yoga. So Gita chapter 3 Karma Yoga, and now we have reached the 10th verse. So today we'll try to understand verse number 10, 11 and 12. Right? So these three verses we'll try to understand. And before we enter these verses, let's just listen to the story of creation. है ना? Because abhi tak we have been talking about the yagna spirit. We have been talking about giving and not taking. We have been talking about so many things about selfless service, nishkam bhav se karm karna. So this verse, the 10th verse, talks about the creator and the creation, and it talks about Kamdhenu, right? The wish fulfilling cow, और आप ये भी मान सकते हैं कि कल्प वृक्ष. So before to understand this verse, we have to understand creation. How did creation take place? And in Srimad Bhagavad Mahapuran, the second skand and the third skand, Sarg and Visarg, are predominantly devoted to creation. है ना? सर्ग में मेगा क्रिएशन and विसर्ग में further creation. So how did creation take place? So the bhav again is very important because we have been talking about the intention and the bhav. So let's focus on the intention with which the creation was created by that जिसका आदि मध्य अंत नहीं है. Right? He was, he is, and he always will be there. Before and after the creation, he is always going to be the way he is. No change whatsoever. कहते हैं कि he wanted to feel loved. Right? He wanted to know how being loved is. प्यार क्या होता है? कोई मुझे प्यार करे तो कैसा लगेगा? तो वो क्या करते हैं? With this thought, he becomes many from one. Right? He is that. उस many में भी वही है. So basically in very simple terms, वो अपना विस्तार करने लगते हैं. अलग अलग रूप में, अलग अलग चीजों में. So that is how the intention or the bhav behind the creation was. And then we go to the other level, and then we realize कि causal ocean में there is this Mahavishnu जो लेटे हुए हैं. When he inhales, universes are destroyed. When he exhales, universes are created. Now we have gone to the second level. So from every pore of his body, multiple galaxies are being created and without his knowing being destroyed. Right? And वैसे बहुत सारे फ्लोट हो रहे यूनिवर्सेस. उसमें से देयर इज दिस वन यूनिवर्स जो हमारा है. राइट? उसमें भी नीचे ही पानी है. इट इज लाइक इन द शेप ऑफ एन एग प्रोबेबली, एंड देयर इज वाटर डाउन देयर. एंड वहां पे विष्णु जी शयन कर रहे हैं. वो महाविष्णु से देयर इज अनदर विष्णु हियर. ही इज नोन एज द गर्भोदकशयी विष्णु. नाउ he for a very long time, for we do not know how many millions and gazillions of years. Children always tell me there is no word as gazillions. I said it's okay, I created it. You know, when you cannot define कि कितने साल हैं, अब कितने क्या हैं, कब तक हम याद रखते रहे, तो gazillion. तो he was coiled up in शेषनाग, है ना? Coiled up अंदर. And फिर धीरे 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 शेषनाग ने अपने फन खोले, एंड जी विष्णु जी थे यहाँ पे. And then gradually from his belly button came out a beautiful lotus. Its stem went up above. ऊपर कहाँ? On top of the ocean which is there in the universe, right? And now this flower, the bud, did not open for eternity. Right? And धीरे से this bud opened. Kamal, right? And inside this Kamal
कौन थे? ब्रह्मा जी. For many, 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 multiple gazillions of years, he also did not gain consciousness. He was sitting there. And after a while, he gained consciousness. उन्हें देखा. And he got petrified. उन्हें देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रचयिता कौन है, What is this entire thing? मैं सडनली कमल के ऊपर कैसे बैठा हुआ हूँ? ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी तो आते हैं ना. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हुआ हूँ, क्यों हूँ, क्यों सडनली आई हैव कम टू दिस फैमिली और दिस वर्ल्ड और दिस एक्ट और दिस सिचुएशन, क्या है? कई बार बोलते हैं ना कि what मतलब, एंड उनके भी दिमाग में आओगे, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, why have you created me? So he wanted so many answers. एंड कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जवाब देने के लिए. There is a roaring ocean which is just hitting against the lotus. He is petrified. He goes down the stem कि जहां से आया वहीं अंदर जाके देखता हूं कि शायद मुझे जवाब मिले. He tries but cannot reach the end. ऊपर देखते हैं तो कुछ है नहीं, वापस आके बैठ जाते हैं. And then he opens his ears. अभी तक तो he was agitated, petrified कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ से जवाब ढूंढूं. स्थिरता नहीं थी उनमें. राइट. द एनवायरमेंट भी ऐसा था कि स्थिरता नहीं दे पा रहा था, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ crashing and thundering of the waves. It was roaring literally. And at that time, when he tried everything, he realized कि कोई जवाब देने वाला नहीं है. तो अब क्या करेंगे? वो बैठ गए. And then he listened to what was there. He listened to the ocean. And ocean जब वो कमल से टकरा रहा था, कुछ भी चीज टकराती है, थप थप की आवाज आती है ना. सो इट वेंट ऑन, तप तप तप. तब ब्रह्मा जी को समझ आया कि अरे ये तो मुझे तपस्या करने के लिए बोल रहा है ना. मेरा जवाब इधर उधर नहीं है, मेरा जवाब मुझे तपस्या करने से मिलेगा. चाहे मैं कितना ही भाग लूं, कितना ही ढूंढ लूं, कितना ही खोज लूं, यह अनंत है, इसका कोई पार नहीं है. तो देन उनमें ठहराव आया, वो बैठ गए. राइट. एंड ही सैट डाउन and he did tapasya for again God knows how many gazillions of years. And then finally, through this tapasya, through this yagna, एक यज्ञ ही हुआ ना, तपस्या करना एक यज्ञ होता है. थ्रू दिस सैक्रिफाइस उनके मन में आया कि अच्छा मुझे सृष्टि रचनी है. राइट. तो उस तप अग्नि से, उस यज्ञ विधि से उनने जो इतना समय सैक्रिफाइस करा, वो बैठे रहे एक आसन पे स्थिर, उससे उन्हें सृष्टि की रचना करना शुरू करा. राइट. तो इट स्टार्टेड व्हेन द लॉर्ड वांटेड टू फील लव्ड. एंड ब्रह्मा जी जो रचयिता, इज द क्रिएटर. राइट. एवरी यूनिवर्स हैज हिज ओन ब्रह्मा, एवरी यूनिवर्स हैज हिज ओन विष्णु, एवरी यूनिवर्स हैज हिज ओन शिव. Right? Creator, protector, destroyer. And there are so many, many, many layers कि उसका अंत पाना, because महाविष्णु के बियॉन्ड क्या पता और महाविष्णु, उसके बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड. तो उनको जब तप करने बैठे तो उनको उनका उद्देश्य समझ आया कि मुझे रचना करनी है. राइट. एंड देयर वाज वन मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दैट रचना. वो रचना कैसे करनी है? यज्ञ से करनी है. सैक्रिफाइस, तपस्या उसमें इनग्रेन्ड होनी चाहिए. ऐसी रचना मुझे करनी है. राइट. एंड देन ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड द ब्यूटिफुल क्रिएशन. वन बाय वन वी कैन लुक एट द ट्री, द पूरा हमारे पास में, वी लुक एट आवर स्क्रिप्चर्स, गो टू श्रीमद् भागवत महापुराण, वहां पे पूरा फ्लो चार्ट, यू कैन मेक इट बाय रीडिंग इट कि अच्छा पहले कौन बने, अच्छा ब्रह्मा जी, अच्छा तो फर्स्ट ह्यूमंस मनुष्यरूपा, और कौन कौन बने, सनत कुमार आए, ये आए, फिर यहाँ से ये आए. सो यू कैन गो फ्रॉम देयर टू द नक्षत्रस टू द प्लैनेट्स टू द जीव जंतु टू द बर्ड्स. एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड हाउ द क्रिएशन स्टार्टेड. राइट. पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें भाव पकड़ना है. राइट. तो हमारे को दो भाव पकड़ने अभी.
एक भाव था प्यार का, राइट, टू फील लव्ड, राइट. फॉर हिम टू फील लव, somebody has to give love, right, right. And यज्ञ, sacrifice, तपस्या, इससे सृष्टि की रचना हुई, राइट. सो दिस इज अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड एंड इट इज ब्यूटिफुल. कई बार कहते हैं व्हेन वी लुक एट द नवरात्रि स्टोरीज, वहां पे कुष्मांडा जब वो निर्माण करती है, इट स्टार्टेड विद अ स्माइल, राइट. वो मुस्कुराई और रचना शुरू हुई. तो ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं. तो हमने भाव दो पकड़े नहीं, भाव काफी पकड़ लिया हमने. प्यार का भाव पकड़ा, तपस्या का भाव पकड़ा, सैक्रिफाइस का भाव पकड़ा, यज्ञ का भाव पकड़ा, राइट. सो दीज आर द 4 भाव्स बेस्ड ऑन विच कर्म योग भी होता है. तो जब ब्रह्मा जी कर्म कर रहे थे, कर्म क्या कर रहे थे, सृष्टि के रचना कर रहे थे, उनमें ये चारों भाव थे. तो सृष्टि में ये चारों भाव है, हर चीज में ये भाव है, चारों भाव, राइट. होल्डिंग ऑन टू दिस, नाउ वील एंटर द verses. These are tongue twisters, but as I again said, for the chanting, please look at the beautiful audios which are there and practice the chanting. It is lovely. We'll chant, but we'll focus on the bhav. Saha yagna, the 10th verse, right? Saha yagna praja srishtva purovacha prajapatihi anena prasavishyadvam एष वो स्त्विष्ट कामधुक्, एष वो स्त्विष्ट कामधुक्. So this is the first verse where we are talking about very simple. प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि काल में, है ना, सृष्टि के आदि काल में वही थे. We started with that story, right? प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों की कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके, उनने प्रजा की रचना की. प्रजा इज ऑल द मनुष्य एंड एवरीथिंग. रचना करके कहा कि इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, राइट. यह इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, यह कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो. यह कर्तव्य पालन की सारी सामग्री प्रदान करने वाला हो. इसके द्वारा, नाउ दैट विल बी द नेक्स्ट वर्स, राइट. सो व्हाट इज ही सेइंग कि आपको सारी सामग्री मिलेगी कर्तव्य पालन करने की. लेट्स रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो. यहां पे वो क्या बोल रहे हैं 10th वर्स में. The Prajapati, the creator, having in the beginning of creation created mankind together with sacrifice, said, by this shall you prosper. Let this be the cow of your desires, Kamdhenu, the mythological cow which yields all desired objects. है ना. तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको सारा, हमने सब कुछ दे दिया इसमें. लेट्स गो अहेड. अभी देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. Then he says, again we said everything has been provided, right? देवताओं को, है ना, उन्नत करो. देवताओं को उन्नत करो. वे देवता लोग, राइट, वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें. यू हेल्प द देवास विल हेल्प यू. एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे. So beautiful, isn't it? We'll go to the depth of it, but this is like, I think, one of the 3 verses which are the heart of Karma Yoga. They say the devas nourished by the sacrifice will give you the desired objects. Indeed, he who enjoys objects
given by the devas without offering in return, वो तो हमने third कर लिया. With this you do nourish the gods and may those devas nourish you. Thus nourishing one another, you shall attain the highest good. And the 12th verse will say, if you do not share what you are getting, you are a thief. वो हम बाद में करेंगे. So now प्रजापति ने रचना की. The creation has been made. And we have again and again said that the creation has been made with a spirit of giving, spirit of love, spirit of sacrifice, not the spirit of hoarding, spirit of taking, spirit of sangrah. Right? जो spirit है इसमें वो यज्ञ spirit है. And in the last session we tried to understand what yajna is. Right? It is offering. It is not offering, just offering oblations into the fire. It is offering our part, doing our part for this better world. Very simply put. अगर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएं, क्योंकि this is yajna spirit is where we say कि हम सृष्टि के लिए क्या कर सकते हैं. Not asking what the सृष्टि can do for me. What can I do for others? Not asking what others can do for me. So प्रजापति जी ने भी यही ध्यान में रख के इस पूरी सृष्टि की रचना करी है. And what is sacrifice? अगर हम सोचे कि why should I sacrifice? What has anybody else given to me? So let's go back to the question that we had requested everybody to come with in their mind. कि whatever was your desire recently, which you have attained, right? एक कोई desire जो आपके मन में थी, जो पूर्ण हो गई है, हो चुकी है. Who contributed to it? All your achievements या फिर the recent achievement जो हम सोच सकते हैं. And if we go to the depth of it, how many elements were there? So many elements came together for us to be able to attain that desire, isn't it? या हमने खुद ने कर ली कि there was nothing else, nobody else. Whatever happened was totally through me. So your last desire, which you fulfilled, think of how many factors were involved in making that happen. एक मिनट रुकिए. Because again and again we are saying yajna spirit, sacrifice, giving. This is how the creation was made. Your focus should be in giving love, not taking, hoarding. नहीं. तो फिर हम बोलेंगे ना हमारे को क्या मिला. तो जो मिला है एक बार आप बैठ के सोचिए उसमें आपने कितना काम किया. आप बोलेंगे ना कि मैंने ही किया, नहीं हो सकता ना. There were so many things, so many factors involved to make that one thing happen. एक छोटी सी चीज ले लीजिए. Even for a student, if he claims that I got these marks on my own and it is all mine, I have put in the hard work. Very good. Yes, you have put in the hard work. Knowledge कहाँ से आई? किताबें कहाँ से आई? Right? कि who provided that environment for you? Who provided the money for the books? Who provided the wood for the papers? क्या अगर आपके पास में वो सब नहीं होता तो आपके पास में किताब होती है आज हाथ में. So if we start looking at it, we realize कि all our achievements and whatever we do is not ours at all. That divine has been working meticulously to put everything in place for us and giving it to us. Right? तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि there is somebody assembling everything for us and presenting it to us. जैसे ही the creator also assembled everything and he presented it to us, right? कि चलो सब ready है and you have this कामधेनु also. आप कर्म करो आपको सब मिलेगा. पर if you work from the spirit of yajna, yajna is sacrifice, giving in your all for the better good. Let's take one more example. One guru was giving an example of basketball. Suppose a person said ki no, I want to become the greatest basketball player, right? He has to sacrifice everything else, right? You cannot, it does not happen overnight. It is everything else is sacrificed for one achievement of one goal. How many balls are bounced? How many balls are aimed when nobody is watching? That sacrifice is essential for that outcome, right? Nothing happens without a sacrifice. To reach, to become the best in that basketball game, so much has to be foregone. कितना कुछ छोड़ना पड़ा. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब छूट गया.
just for that one last ball, for that winning ball. Beautiful examples they give, and that is true. So nothing is achieved without giving sacrifice, right? So this is what he is saying कि यज्ञ स्पिरिट से. तो जब इनने भी जब सृष्टि बनाई तब इनके दिमाग में क्या था? All this is being created as a यज्ञ. तपस्या करके मुझे इसका जवाब मिला है, सैक्रिफाइस मैंने इसमें इनग्रेन डाला है, एंड इसके अलावा यज्ञ है. और इस अगर हम इस स्पिरिट से काम नहीं करेंगे तो कामधेनु भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी. वेरी सिंपल. सो अभी आप यहाँ पे देखिए, अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं. सो व्हाट इज अ यज्ञ अगेन? Whatever, and we have already discussed this in great detail in the last session. दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं. ऐसे यज्ञ का दायित्व मनुष्य पर ही है. This is our responsibility to fulfill our duty from the yajna spirit for everything and for the greater good, not for the self. And यहाँ पे there is a beautiful paragraph. Let me just read it and then we'll go in depth. कर्म योग दूसरे की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा, कर्म योगी दूसरों की सेवा और हित करने के लिए सदा तत्पर रहता है. He is always ready to do सेवा, to help somebody, do the greater good. He is always ready, and that is the person who is called a कर्म योगी. इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी भी कमी आने नहीं देंगे. बट इसमें इट इज नॉट फॉर योर ग्रीड. प्रजापति बोल रहे हैं कि आप कर्म करिए, यज्ञ प्रवृत्ति से करिए. कामधेनु आपके ये यज्ञ को संपन्न करने के लिए खड़ी है. उस यज्ञ को संपन्न करने में आपको कभी कमी नहीं आएगी. दैट शुड नॉट बी टेकन व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स, डूइंग द ग्रेटर गुड. यू विल हैव अबंडेंस ऑफ ऑल काइंड टू स्टोर इन योर स्टोरेज. नहीं, ही इज नॉट सेइंग दैट. ही इज सेइंग करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह करने के लिए जो व्हाट इज द नेसेसिटी टू लीड योर डे टू डे लाइफ विल बी प्रोवाइडेड to you, provided you are working in यज्ञ spirit. दूसरों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसको ये उपयोगी वस्तु सुगमता पूर्वक मिलती है. When somebody is acting for the greater good, right? अब if we look at the सृष्टि also, अभी when we go to the next verse, we are going to realize that the सृष्टि जब बोलते हैं ना कि आप देव की मदद करिए, देव आपकी मदद करेंगे. What is देव? We'll just cut to the next verse and then come back here. Because प्रभु बोल रहे हैं कि आप काम करिए and देव आपकी मदद करेंगे, कामधेनु आपकी मदद करेगी. When you are acting in the यज्ञ spirit, what do they mean by देव? कि हम यज्ञ डालेंगे, कहते हैं ना कि हम यज्ञ याग आदि नहीं करते तो देव कमजोर हो जाते हैं. But think for once, all the entire creation is but that divine God, right? And in our Sanskriti, if we realize it, that spirit has been ingrained. We pray to the rivers, माँ है हमारी, right? We pray to the stones and the parvat. We pray to the soil, we pray to the air, we pray to the sun. We never misuse them. We don't say कि ये हमारे लिए हैं, right? We don't say कि भगवान ने सारी सृष्टि हमारे enjoyment के लिए बनाई है. We can exploit it. No. हमारे धर्म में देव, सारे में देव हैं, बाहर भी देव हैं, उनमें हम झुक रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू, इफ वी टेक केयर ऑफ देम, बी इट द रिवर्स और द जंगल्स, बी इट एवरीथिंग दैट वी सी एंड डोंट सी, इट इज गोइंग टू इन टर्न टेक केयर ऑफ अस, राइट? इफ वी एक्सप्लॉइट इट, क्या होगा? वी कैन सी इट राइट नाउ, द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. सो इट इज बोल रहे हैं कि आप इनकी मदद करिए, आप इनका ध्यान रखिए, ये भी आपका ध्यान रखेंगे, राइट? These devs are outside also, inside also, right? Indradev अंदर भी हैं, बाहर भी हैं. So everything that we see outside is inside also, and that is the chart that we have shared over here, where they have said कि the tongue
is Varun, the nose is Ashwini Kumar, the eyes are the Adityas, the skin is the Vayu, ears are again the Dik, epidermy is the god of vegetation, and then you go on and go forth and you say hands are the Indradev, Vishnu ji Pad hai, Buddhi Brahma ji hai, and so on. All the devas. So bahar bhi hai, andar bhi hai. So not only are we supposed to be in harmony with the things outside, we are supposed to be in harmony with our own sharir, and we have already put it as something else, right? So इस शरीर को भी सेवा में ही लगाना है. There was a very beautiful joke that one Sadhuji puts forward. Ki there was a sage who really worked very hard, not a sage, a disciple worked very hard, and he had a very beautiful garden. खूब मेहनत करके उस garden को ready करा, और suddenly one animal came in and he started eating the garden and destroying it, and this disciple lost his cool and he hit the animal, right? And the sadhak, the disciple, he realized that it is a very big mistake. And then what he said कि देखो हाथ में तो इंद्र है ना, तो मैंने कुछ नहीं करा, इंद्र ने करा है. हम भी ऐसे ही कर देते हैं कई बार, राइट? कि अभी सडनली आपने बोला है कि अंदर भी इंद्र है, बाहर भी इंद्र है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, मारा मैंने थोड़ी, इंद्रदेव ने मारा है, राइट? बट देन इंद्रदेव केम बैक, ही सेड बिकॉज द सिन वाज टेकिंग कि तुमने ऐसा करा, तो ही सेड मुझे नहीं, द सिन शुड गो टू इंद्रदेव, राइट? तो उन्हें तो इंद्रदेव केम, बोले ये बगीचा किसने बनाया? मैंने बनाया. सींचा किसने? मैंने सींचा. ये सब, बोले ये सब तुमने करा, और जब मारने की बारी आई तब मैंने करा. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, है ना? सो ही रियलाइज कि देखिए, वी शुड नॉट टेक इट लाइक दिस कि सडनली फिर हमारे हाथ से तो कुछ पाप हो ही नहीं रहा है, इंद्रदेव कर रहे हैं. नहीं है, मतलब फिर तो तर्क का कोई एंड ही नहीं होगा, राइट? वैसे नहीं सोचना है. So over here he's saying that the devas are outside, devas are inside. Live in harmony with the devas, live in harmony with the nature, live in harmony with everything that is there. And that is when you are in harmony with everything outside, that in return will be in harmony with you. Very simple. आप ये सोचिए ना, is it possible कि we can exist without them? Can we exist happily after we exploit them? So, हर लेवल से हम देव को बोल सकते हैं. बट अगेन द देवास आर गोइंग टू ब्लेस यू विद अबंडेंस नहीं है. पीपल विल से ओके, सो इफ वी डू यज्ञ एंड इफ वी डू हवन, एंड फिर हमारे पास में बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी, हम ऐसा करेंगे, अब माँ की पूजा करेंगे तो हमारे पास में नहीं. दिस इज नॉट वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो आपको कर्तव्य करने के लिए, कर्म योग में सिद्ध रहने के लिए, यज्ञ करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए और बेसिक जीवन निर्वाह करने के लिए चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. देखिए, द बर्ड्स गेट इट, राइट? द बर्ड्स गेट इट, द ट्रीज गेट इट, एवरीबडी एल्स, सारे जीवों को मिलता है. एंड ब्रह्मा जी हैज क्रिएटेड द सृष्टि वेयर ही इज सेइंग दैट देयर इज एंड एवरीबडी हैज बीन मेड टू गेट एवरीथिंग. किसी को कमी नहीं होगी, पर हम विश्वास नहीं करते, राइट? एंड लेटर ऑन द क्वेश्चंस विल कम कि फिर तो if we do only this, then what will happen to us? It is a very idealistic world that we are talking about. इसका भी राम सुखदास जी ने जवाब दिया है. So over here he is saying, ब्रह्मा जी विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली है हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है. ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है कि आपको यज्ञ करना है, सृष्टि इसी से है, जब कर्तव्य कर्म करने का निश्चित किया है, तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देने का भी उन्हीं पर निर्भर है. जितनी सामग्री देने भी उन्हीं पर निर्भर है. When he has given us that this has to be done, so he has also prepared what will be needed for this to be done, right? Why are we doubting it? So यहाँ पे जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप कर्तव्य कर्म करिए, यज्ञ स्पिरिट से काम करिए, देने की सोचिए, लेने की मत सोचिए. कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं रखता. चाहे इट कैन बी इवन as minute as appreciation. The minute we even expect appreciation in return for an action, it binds us.
तो फिर हमने किसी चीज के लिए वो कर्म करा। तो ओवर हियर ही सेइंग कि कर्म योगी कभी भी किसी चीज के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा देने के लिए काम करता है। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू गिव। मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। तो ऑल दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग, इन सबको हमें देना है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन वेरी ग्रेट डेप्थ, एंड देयर इज अ स्टार दैट आई हैव पुट हियर। सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देता नहीं है। थिंक अबाउट इट। यहां पे कई बार कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, राइट? जो इंसान, एंड थिंक अबाउट इट, इफ समबडी कम्स टू योर हाउस और you know that this person is going to come and gobble up everything, it'll be some people have this natural tendency to hide it कि यार ये रख लो, ये आते ही ना सब कुछ छेड़ने लगेगा, ये देखेगा वो देखेगा, हटा लो हटा लो हटा लो। जिसके मन में लेने का भाव होता है, इट इज अ वेरी माइन्यूट एग्जाम्पल, जिसके मन में लेने का भाव होता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता, सृष्टि भी उसको कभी कुछ नहीं देती। We might think कि ऐसा तो नहीं है, we have seen people in the long run, it is a very long picture, हमें बस थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है अभी, राइट? सो इट इज सेइंग जो लेने का भाव रखता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला, एंड इट इज ऑल्सो सेइंग डोंट लुक एट व्हाट द अदर्स आर डूइंग फॉर यू, ऑलवेज गिव मोर देन यू टेक, ऑलवेज हैव बी इन द स्पिरिट ऑफ गिविंग। डोंट से व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न, बिकॉज दैट इज नॉट योर जॉब। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं दैट इज नॉट योर जॉब। आप अपना काम करिए ना, आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, दूसरे के कर्तव्य पे ध्यान नहीं दीजिए। कहते हैं ना, माई राइट्स एंड वेयर अदर पीपल्स राइट बिगिन, इजंट इट? कि मेरी वहीं तक सीमा है, जहां उनकी सीमा, उनका राइट शुरू होता है वहां मेरा राइट खत्म हो जाता है। सो यहां पे बोल रहे हैं कि डोंट थिंक, एंड दैट क्वेश्चन विल कम, वी कीप गिविंग, व्हाट अबाउट द अदर्स? ही सेज नो, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। यू मिस इट, you miss the entire scheme of creation. Love, selfless love, giving, sacrifice. We talked about sacrifice, right? Sacrifice में क्या होता है? A mother sacrifices, right, for her child without expecting anything in return. Right? Everything is put on hold for the success of that child. Although वो भी निस्वार्थ नहीं होता, पर फिर भी अपने बच्चे के लिए, दैट इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस दैट अ मदर मेक्स, राइट? देर आर लाइक, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप यू गो टू, आई थिंक, ऑक्टोपस एंड स्कॉर्पियंस एंड ऑल, आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न, आफ्टर द बेबीज आर बोर्न, द मदर डज नॉट ईट, डज नॉट मूव, एंड शी अलाउज द चाइल्ड टू फीड ऑन हर ओन बॉडी। वो आहार बन जाती है उन बच्चों को सर्वाइव करने के लिए। हमें लगता है मनुष्य श्रेष्ठ है, ये जीव जंतु को देखिए आप, it stays put and those children feed on her and she does not move, does not reject, so that the next generation can move forward. That is sacrifice. How much pain does she endure? जब वो खा रहे हैं, she is live and she is being eaten by her own offspring so that they can survive. That is sacrifice. वो हर चीज में ये चीज भरी हुई है, sacrifice. तो अगर हम कर लेते हैं तो हम कुछ बड़ी बात नहीं करते, हम तो छोटी छोटी चीजें कर देते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट, एंड सृष्टि हमें सिखाती है। भगवान ने जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, राइट? सी, एंड बियॉन्ड ब्रह्मा जी ऑल्सो द क्रिएटर इज दैट डिवाइन, राइट? ब्रह्मा जी भी निमित्त ही है। तो व्हेन ही हैज एवरीथिंग हैज सैक्रिफाइस इन इट, सो डू वी, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। वी हैव टू से ओके, व्हाट कैन आई गिव, व्हाट कैन आई डू, इट्स नॉट नथिंग इन रिटर्न। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज माई बेनिफिट? आजकल वो चेंज हो गया है, एवरीथिंग हैज बिकम अ बार्टर सिस्टम, अ गिव एंड ट्रेड। हम तो भगवान को ही नहीं छोड़ते कि हम आपको ये देंगे तो आप मुझे रिटर्न में ये दे देना, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? पर सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने इसके लिए नहीं की थी। सो व्हेन ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, कहते हैं ना कि जब क्रिएशन किया था, लेट्स रीड इट अगेन, व्हाट ही इज सेइंग इज, द प्रजापति created, having in the beginning created mankind together with sacrifice, said, by this shall you prosper. By sacrifice, by giving, by taking care of others, you will prosper. And that कामधेनु है,
वो खड़ी है, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी. कहते हैं ना, देयर इज दिस वेरी फेमस सेइंग ना, जाको राखे साइया. जो भगवान का बंदा होता है, वो जो सबके लिए करता है, वो कभी भूखा नहीं सोता. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी हुई. बिकॉज वेन द स्पिरिट इज देयर, द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू. इट इज डिजाइन्ड लाइक दैट. हमें ये बोल रहे हैं, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स. एंड वॉट वी आर डूइंग इज, करंट ऐसे जा रहा है, हम वी आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द करंट, एंड दैट इज वाई वी सफर. हम कर्मयोग समझ ही नहीं पाते, हम उस फ्लो में चल ही नहीं रहे, हम रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, उल्टी डायरेक्शन में हम बह रहे हैं, तो हमें तकलीफ हो रही है. लेट गो एंड मूव विद द फ्लो ऑफ क्रिएशन, विच इज सैक्रिफाइस एंड गिविंग. एंड ही सेज ना, उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है. When we are doing all this, okay, creation, sacrifice, you give everything, when we are working in that spirit, the minute we say कि I expect, मेरे मन में आशा जागती है, right? और उन पर अपना अधिकार, then this is my right, I should also get this, I expect this, ये मेरी आशा है, ये मेरा अधिकार है, then it is wrong. Then the spirit of sacrifice, yagna spirit is lost, and the spirit, the universe again is resonating where हमने, क्योंकि इसी के लिए हमने क्रिएशन की बात की, क्योंकि क्रिएशन में सैक्रिफाइस इनग्रेन्ड है. तो द मिनट वी स्टार्ट सेइंग कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरा अधिकार है, मेरे को आपसे आशा है, सो देन इट बिकम्स अ गिव एंड टेक. द यूनिवर्स इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अ गिव एंड टेक, इट इज जस्ट मेंट टू गिव. देखिए ना, अगर आप हमारे पास में भी, आसपास भी देखेंगे ना, तो you'll realize everything but us is giving, right? अब देखिए, अगर बच्चा जन्म लेता है, ऑटोमेटिकली, वेरी सिंपल, माँ दूध देती है, वो बच्चे के लिए देती है, ये थोड़ी बोलती है कि मैं भी दूध पीऊंगी, राइट? माँ ने जन्म दिया, वो दूध बच्चा ही पीता है, राइट? खुद थोड़ी बोलती कि नहीं, अब दूध आया है और मैंने बनाया है, मेरे स्तन से निकला है, तो मैं भी पीऊंगी, एंड इट्स वेरी न्यूट्रिशियस. कभी देखा हमने ऐसा? तो सृष्टि से भी, सृष्टि, दिस इज अ वेरी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सृष्टि वर्क्स इन दिस कॉन्सेप्ट. दूध है, पर वो बच्चे के लिए. जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अपने लिए नहीं, और अपने लिए नहीं है, और अपना भी नहीं है. एंड इट इज वेरी इजी वंस वी अंडरस्टैंड दैट nothing is ours. Neither the body, nor the thought, nor the mind, nor everything that we have. It has been given. It is such that it was offered to us in a platter. It is nothing that is mine, या फिर मेरे एफर्ट से मुझे मिला है. Everything together has put it in a platter. तो देने में आसानी हो जाती है. Isn't it? If we start thinking कि ये सिद्धांत, if we really put this principle in our mind, कि nothing is mine, not even the body, thought, mind, whatever I possess is mine. It has been given, or if I give it back to who has given it to me, what is the problem? पर हमें मुश्किल होती है ना, छोटी सी चीज अगर कोई हमें दे दे और आके वापस मांग ले, तो हमें कितना बुरा लगता है. हम ये नहीं सोचते कि अरे उसी ने दिया था, उसने वापस ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है. इनफैक्ट हम भी अगर किसी को कोई चीज देते हैं, तो हम उसको भूलते नहीं है. We'll go and ask, okay, so I gave you this, what did you do with it? How did you use it? और अगर वो बाय चांस आपने उसको दे दी, तो खत्म हो गया ना, वो चीज तो उसकी हो गई. उसने अगर आगे किसी को दे दी, तो देखो मैंने तो इतने प्यार से दी थी, उसने नहीं पहनी, किसी और को दे दी. उसकी चीज है, उसको जो करना है वो करेगा, राइट? हम इतना पकड़ लेते हैं चीजों को. छोड़ना सीखिए, बिकॉज सृष्टि का जो चल रहा है, द रिदम, द फ्रीक्वेंसी is based on this. We are not aligning with the frequency of the universe, and that is why we are facing all the problems. जो दूसरे का अधिकार होता है, वही हमारा कर्तव्य होता है. It is a very strong statement that they have made. But हमारा अधिकार का क्या? छोड़ो ना, अपने अधिकार की बात मत करिए.
So, and you'll say this is so idealistic, does not make sense. हम वो बात कर ही नहीं रहे, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं. दूसरों का अधिकार आपका कर्तव्य है. बहुत मुश्किल है ना, because you're not aligned to the frequency of the universe. That is why we said प्यार देना, sacrifice, तपस्या, यज्ञ, इससे हमारी सृष्टि बनी है. ये है वाइब्रेशन सृष्टि का. जो ओम निकलता है ना, ओम ओम ओम, कण कण, एक एक जो वाइब्रेशन है उसमें गिव गिव गिव, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, आहुति डालो, दो दो दो, लो कहीं नहीं है. एंड अगेन यहां पे कहते हैं ना कि हमें लगेगा कि जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से, धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार संबंध नहीं रहता. राइट? ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता. एंड दैट इज हाउ वी आर स्पेयर्ड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. थक गए हम. वी डू नॉट नो हाउ टायर्ड आवर सोल इज. वो बोलती है छोड़ो ना, दे और खत्म करो, मुझे मुक्ति चाहिए. आई एम टायर्ड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ. कितने जन्म, कितने ये, कितने वो. पर जब तक हम इस धरोहर को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपना अधिकार, अपना ये जोड़ के रखेंगे, तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा. जो अपनी कामना पुष्टि के लिए आस्तिकता पूर्वक भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिसके पास भोग सामग्री का अभाव है उसकी भी हिंसा करता है. And this is something we discussed in the Ramcharitramanas class also, right? कि not only are we actually being detrimental to ourselves when we are working in the spirit of taking, we are being detrimental and we are causing harm to everything else that has been created, because again we are breaking the harmony. अभी सिग्नल है, सीधा जाना है, और सडनली आप लेफ्ट टर्न ले लो तो आप तो मरोगे ही मरोगे, पीछे 10 लोग और मर जाएंगे. और हम वही कर रहे हैं. जब सीधा जाने का सिग्नल है, आप लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, पीछे आगे क्यों घूम रहे हो? खुद की तो हानि कर ही रहे हो, दूसरों की भी हानि कर रहे हो. और हमें दुख कितना होता है, बिकॉज हमारा निष्काम भाव से कर्म नहीं होता, देने की वृत्ति हम में नहीं है. हमें शुरू से ये सिखाया गया है, तुम पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, तुम रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा. बचपन से हम लोग बच्चों में ये कंडीशनिंग भर देते हैं, मत भरिए. तुम्हें रिस्पेक्ट देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू गेट इन रिटर्न. राइट? तो क्या है निष्कर्ष यह निकला. नाउ ही इज गिविंग एज अ वेरी ब्यूटिफुल सोल्यूशन. ये निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म, वी हैव अंडरस्टूड, दूसरों का अधिकार हमारा कर्तव्य है. राइट? देयर राइट इज माई ड्यूटी. अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथन अनुसार, सो ब्रह्मा जी इज सेइंग, वह परम पर कल्याण को अवश्य ही प्राप्त होगा. राइट? इसमें कोई संदेह नहीं है. ही विल बी ब्लेस्ड, उसका कल्याण होगा. बट अगर वी स्टार्ट इक्वेटिंग कल्याण टू द मटीरियल बेनिफिट, आई थिंक वी विल बी डिसअपॉइंटेड. See, our scriptures don't guarantee any material benefit. It is a spiritual scripture. It is talking about a spiritual journey. Arjun is a jigyasu where he is awakened to the fact कि ये माया मिथ्या के परे मुझे ले जाना है, मुझे समझाओ. मुझे तो कर्म भी नहीं करना. तो प्रभु बोले कर्म तो करना पड़ेगा. अब कैसे कर्म करोगे ताकि तुम इस जीवन मरण से मुक्त हो जाओ, वो मैं समझा देता हूं तुम्हें. Right? We discuss so much. So if we think this is an idealistic world where everything that is being said is idealistic, it is not. Because have faith. The Creator created it keeping this in mind. Go with the flow. Become a giver. And सही में जो देते हैं उनकी ऑरा, उनकी चमक वो अलग ही होती है ना. क्योंकि उनमें जो चमक होती है, इट इज नॉट द चमक ऑफ देयर ओन बीइंग,
It is the universe shining through them. They have aligned with the frequency. They are not resisting it. कितने हमने देखे हैं, मतलब there are so many stories of people where they don't even don't even flinch for a minute before giving their own only roti. एक कहानी आती है ना, this is what the verse is telling us to do, a simple story. बाकी सब आप छोड़ दीजिए. ये वर्स ये कह रही है कि एक परिवार था, there was a family. बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, बहुत मुश्किल से काम करते थे. एक दिन what they did is they made a beautiful blanket. इतना सुंदर ब्लैंकेट दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके बच्चों की सहायता से बनाया कि 4-5 दिन हो गए, खाना नहीं मिला है, मुश्किल से पानी मिल रहा है. कोई बात नहीं, हम इसको जब बेचेंगे ना तो हमें पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो हम भी खाएंगे और हमारी गौ को भी खिलाएंगे. बड़ी इच्छा से with all that desire he took that blanket to the market. And when he reached the market, he was looking around and बेचते बेचते पहुंचते पहुंचते रात हो गई, राइट. एंड सोचिए आप, उसके बच्चे घर पे हैं, उसको भूख लगी होगी बच्चों को, एवरीबडी इज वेटिंग कि अभी पापा आएंगे, थोड़ा खाना लेके आएंगे तो हम खाएंगे. एंड वो ब्लैंकेट ही उसका एक साधन है जिससे उसको पैसे मिल सकते हैं, राइट. एंड विदाउट फ्लिंचिंग उसको जब देखा उसने कि एक इंसान, उसके पैर में बहुत बड़ा घाव था, राइट. उसमें खून बह जा रहा था. उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसको रोके कैसे. उसके पास में कुछ ज्यादा नहीं था, छोटी सी पतली सी धोती थी और ये एक मोटा सा बनाया था. अब उसने बोला मैं इसकी कैसे मदद करूं, क्या करूं. इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं समझ आया. बिना सोचे समझे, बिना एक पल भी अपने हाथ को रोके उसने फाड़ा और अच्छे से उसका पैर लपेट दिया. खून का बहाव रुक गया, वो बच गया. क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था. बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हैं एंड दे एक्सप्लेन इट टू अस सो मेनी टाइम्स, पर हमारे जहन में ये बात उतरती नहीं है. ये तो करना मूर्खता हो जाएगी. मूर्खता नहीं है. सृष्टि जिसने बनाई है वो बता रहा है कि सृष्टि तो ऐसे ही चलेगी, राइट. तो हरिश्चंद्र के पास एक छोटा सा कबूतर आया एंड कबूतर या छोटा सा पंछी था एंड एक चील आ गई. एंड ये बहुत लंबी स्टोरी है. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. इट इज टेस्टिंग हिम एंड ही सेड इसको मत मारो, इसने मेरे में पनाह ली है, आपको जो चाहिए मैं इसके बदले में दे देता हूं. तो ही सेड ठीक है, तो छोटी सी चिड़िया है, जितना इसका मांस है, द वेट ऑफ इट्स फ्लैश, यू गिव मी दैट मच. तो बोले तराजू मंगा लिया, चिड़िया को बैठा लिया, काटने लगे, रियलाइज करा कि इसका तो वजन बढ़ता जा रहा है. खुद तराजू पे जाके बैठ गए. ऐसी अनगिनत कहानियां. सी ऑल दीज जो स्क्रिप्चर्स है ना, वेद है, गीता है, इनको कहानी रूप में हमें समझा देते हैं, क्योंकि हमें कई बार ये बातें नहीं तो समझ नहीं आती. मतलब ठीक है, इसको बचाने के लिए अगर मेरे को पूरा मेरा शरीर भी देना पड़ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो बैठ गए तराजू पे जाके. एंड दैट इज व्हाट दीज 2 सिंपल स्टोरीज इज व्हाट ब्रह्मा जी इज टेलिंग अस कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कभी अनहित नहीं होगा. अनहित मतलब स्पिरिचुअली तुम कभी डिक्लाइन नहीं करोगे फिर. सो बट इट इज थॉट प्रोवोकिंग एंड एक बार इट मेक्स अस स्टॉप कि फिर क्या. एंड वील जस्ट ब्रीफली टेक द नेक्स्ट वर्स कि इसमें when he says all this, he says very simply कि everything around you. and जो next verse है 13th verse, उसमें he says if we do not follow that सिद्धांत, अगर हम उस तरह से नहीं जीते हैं, we'll do it in detail later on because I think there is enough thought to keep us busy for the entire week, then we are thieves. The next verse हमें बोल रही है कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, राइट, जो भी हमें समझाया गया है यहां पर, तो हम क्या है? चोर है, राइट. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ नहीं है. नेक्स्ट वर्स में भी और कुछ नहीं है, राइट. एंड
कई बार, so basically if you are supposed to take the takeaways from today, it is like nothing worth achieving in life is ever achieved alone. Work in harmony with everything around you, even the nature, the devas, the pitras. हमने सबसे अपने आप को काट लिया है, right? कि देवान भावयन, देवान, they are talking about the devs. We have cut off, पितृलोक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं. We have cut off and we have become isolated. No. Work in harmony with everything around you. Resonate with it. आप ये मत पूछो कि मैंने किसको क्या दिया, किसने मुझे क्या दिया है. Don't ask what the world can do for you. Think कि what can I do for the world. अपना भाव पलटो. कामधेनु है हमारी यज्ञ वृत्ति पूर्ति के लिए, भोग वृत्ति के लिए नहीं. राइट? यज्ञ वृत्ति पूर्ति के लिए कामधेनु है, खड़ी है, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी. भोग वृत्ति का कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं लोग. दे आर टॉकिंग अबाउट कर्म योग भाव, योग वृत्ति, नॉट भोग वृत्ति. We have to be very careful because otherwise, these verses, so if I do greater good, कामधेनु is there, I'll get abundance and abundance. किसी ने नहीं बोला ऐसा यहाँ पे. समझने में, we have become very selective in our understanding and we have decided to put 1 and 1 together and say it is going to make 11, nahi. And then, self-made करके कोई भी चीज नहीं है. The sooner we understand it, gratitude is going to flow through us. So again, we will just stop here, go in depth again later with this one very question, which is going to help us answer or understand these two verses. Your last desire, which you found fulfilled. Think how many factors were involved in making that happen. And what was your contribution? Right? Use the subjective, objective, जो भी आपको लिखना है लिख के देख लीजिए. And then, when you get the answer, these two verses will make sense. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman. We will just end the Gita. I did not even start it today, but Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjun Samvade Karma Yogo Nama Tritiyo Dhyayah. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.